ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں 9 مئی اور اسرائیل آج کل ایک ہی جملے میں بولے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کی پامالی کا جو بدترین اس وقت آپ کہہ لیجئے چہرہ ہے وہ اسرائیل ہے اور وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق بات کرتا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس یقینی طور پر جگرا ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسرائیلی بیان بازی کے حوالے سے حکومتی اتحادیوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کرتا. جبکہ شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بیان سامنے آنے کے بعد 9 مئی واقعات کے تانے بانے چیئرمین پی ٹی آئی سے ہی مل رہے ہیں. اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, کس نے کیا کہا ہے آپ بھی دیکھیں. اسرائیل کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان سے متعلق تنقید نے نئی بحث چھیڑ دی, جس پر رد عمل دیتے ہوئے حکومتی اتحاد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 9 مئی جیسا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کرتا. 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں کہا اسرائیل ان کا دفاع کر رہا ہے جنہوں نے اس ملک میں غدر مچانے کی کوشش کی. وقت کیا ہے 9 مئی کے بعد کا, وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے اٹھائے, ان شہیدوں کے جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں, اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے مجسمے اٹھائے, انہیں ٹھوکریں ماری, اٹھا کے نیچے پھینکا اور تصویریں بنائی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کی اسرائیل حمایت کر رہا ہے. آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اسرائیل کہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تو مجھے آج حکیم سعید مرحوم کی بات یاد آ گئی. وہ یہ فرما گئے تھے کہ پاکستان میں ایک حکمران آئے گا, ایک سیاسی پارٹی آئے گی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا اسرائیلی حکومت کا بیان سامنے آنے سے تانے بانے چیئرمین پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. اسرائیل کا وہ ایجنٹ, اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ, اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسا برس انویسٹمنٹ کی, اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں, قانون کے شکنجے میں آنے جا رہا ہے. وہ اب اس کی تمام چیزیں کھل چکی ہیں, اس کی تمام بدماشیاں سامنے آ چکی ہیں, اب وہ پھنسنے جا رہا ہے. حکومتی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ نہتے فلسطینیوں پر جارحیت کرنے والا اسرائیل کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے. پاکستان سے متعلق اسرائیلی بیان اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, قوم اس کی مذمت کرتی ہے. معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے عبید, اور اب متحدہ عرب امارات نے $1 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل بھی کر دیے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $3 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس بات کا اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور $1 ارب کا ڈپازٹ کر دیا ہے. وزیر اعظم, آرمی چیف اور پاکستان کے عوام کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کے مشکور ہیں. عرب امارات $1 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے. اس سے ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں مزید $1 ارب سے بہتری آئے گی. کل $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے, آج یہ $1 ارب ڈپازٹ ہو رہا ہے, اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے. میں اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں. وزیر خزانہ نے کنفرم کیا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شکریہ ادا کیا. اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کروانے پر UAE کے صدر کا شکر گزار ہوں. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ UAE نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی اس مہربانی کو معیشت کے استحکام کے لیے اہم سمجھتے ہیں اور UAE کے اس اقدام کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم بھی کرتے ہیں. تو آج IMF پاکستان کو $3 ارب دینے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گا. ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے. پاکستان کے لیے $1.19 ارب کی SBA کے تحت منظوری کی توقع ہے.
SBA का जो दूसरा जायज़ा है वो रवां साल सितंबर में, जबकि तीसरा जायज़ा दिसंबर में होगा। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तो जो ही IMF को मनाया, दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को डिपॉजिट देना शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने $2 अरब, UAE ने $1 अरब, और आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मंजूरी देगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुसलसल कोशिशें की। तो मुआशी सूरत हाल जो है वो इस वक्त कुछ बनती नज़र आ रही है, कुछ एक ब्रीदर जो है वो क्रिएट हुआ है। इस मुआशी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग को भी आज पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है। वो ये कहते हैं कि $3 अरब का बेल आउट पैकेज जो है वो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूर कर लेगा। जी हाँ, इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहरानों से निकलने के नज़दीक है। बेल आउट पैकेज की मंजूरी 9 माह के लिए दी जा रही है। इसके साथ साथ बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का भाटी गेट में आतिशज़दगी के शिकार घर का दौरा, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल वक्त रहा है, जबकि IMF से मुआहिदा हुकूमत की कामयाबी। जबकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये लम्हा फ़खरिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया। बहरहाल हमजा शहबाज क्या कह रहे हैं IMF मुआहिदे पर, आप भी देखें। 70 साल में जब से पाकिस्तान मार्च में आया है, ये अवाम और पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल तरीन हालात देखे। इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि दोबारा से IMF के साथ मुज़ाकरात हुए और दोबारा से जो है एतमाद साजी हुई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और मईशत के हवाले से अच्छी खबर की नवीद लेके आएगा। तो IMF के बेल आउट पैकेज से मुतालिक आज फैसला हो जाएगा, सभी इस पर खुश हैं। और साथ ही साथ इस सारी बहरानी कैफियत में एक सवाल ये था कि असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात कब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात से मुतालिक आज तमाम शुकूक व शुबहात दूर करते हुए ये कहा कि इत्तेहादी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन अपने जो ज़ाब्ता-ए-कार है उसके तहत इंतखाबात की तारीख दे दे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की काविशों से $2 अरब हमें मिले हैं, फार्मा इंडस्ट्री के मसाइल का जल्द हल निकालेंगे। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में जानिए। मौजूदा हुकूमत खत्म होगी या नहीं, क्या आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? वजीर आजम ने इस हवाले से फैली तमाम अफवाहों का गला घोंट दिया। पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड और कौमी निसाब के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बताया, इत्तेहादी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना। वजीर आजम इस्लामाबाद में फार्मा समिट की तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर उनका कहना था, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात से मुताल्लिक़ लाहे अमल वज़ा करना चाहिए। सऊदी अरब से जो $2 अरब मिले वो आर्मी चीफ की खुसूसी काविशों से मिले। जो $2 अरब जो है, ये खालिसतन ये हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नासिर मुनीर, उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है कल, और $2 अरब जो जमा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, फार्मा इंडस्ट्री का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। हुकूमत फार्मा इंडस्ट्री की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए भरपूर अंदाज में कोशां है। उधर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ओहदेदारान ने कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने कहा है कि एक अनाड़ी के हाथ मुल्क देने का नतीजा हम सब ने देख लिया। उस अनाड़ी ने हर इदारा और हर शोबा तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जो तमाम मुश्किलात हैं उसका बाइस भी यही एक शख्स है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा। वो मज़ीद ये कह रहे थे कि मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हम पुरज़्म हैं। तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था वहीं से शुरू करेंगे, और इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद मईशत को संभाला दिया है। नून लीग आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने जो रफ़क़ा हैं उनसे बातचीत में इस बात को भी दोहराया। तो बहरहाल इंतखाबात की तैयारी के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर तरफ गहमा गहमी है, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने। आप मुल्क में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की अगर बात करें तो दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। गंदा सिंह वाला के मकाम पर पानी की ये सतह 57,380 क्यूसेक तक पहुँच गई है। नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा है। इसके अलावा चंदा सिंह, धूपसड़ी समेत दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ फसलें डूब गई हैं। रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया है। सूरत हाल मजमूई तौर पर है क्या, शबीर हैदर जफर की इस रिपोर्ट में जाने।
भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। गंडा सिंहवाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की सतह 57,380 क्यूसेक तक पहुंच गई है। सैलाबी सूरत हाल से नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा है। दरिया में तुगयानी से पतन, चंदा सिंह, धूपसड़ी समेत दीगर इलाकों की फसलें डूब गईं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए लोधरा में अहमद हसन के मकाम पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। इन कैंप्स पर चारपाइयों और बिस्तर का बंदोबस्त किया गया है। रेस्क्यू की कश्तियां और एहलकार भी अलर्ट हैं। मेडिकल कैंप में सांप और कुत्ते काटने के अलावा खसरा, पोलियो की वैक्सीन का भी बंदोबस्त किया गया है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर तमाम सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। पीडीएमए के तर्जुमान के मुताबिक करावी और चनाब समेत दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। ना कोई जानवरों वास्ते कोई मसला है, ना कोई चीज़ नहीं पाने वास्ते, नहीं कोई लैन वास्ते, न देने वास्ते। सुबह की कोई इंतजामिया नहीं आई। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ मदद ਉੱਚੀ जगह से आप पहुँच रहे हैं तो फसलां सारियां तबाह हो गई हैं। 20 से ज़्यादा गाँव हैं जो इस वक्त ये सड़क की वजह से मुतासर हो चुके हैं और ये इंतजामिया जो है इसने कुछ भी नहीं किया। अपनी मदद आप देता है, लोग ऊंची जगह से जा रहे हैं, अपने बच्चों ले जा रहे हैं, माल डंगर ਨੂੰ संभाल रहे हैं। फसल तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜੀ रुड़ गई। दूसरी तरफ रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। अब तक 2600 अफराद को बोट ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया कर चुके। पानी में फंसे 200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए सतलुज में सैलाब ने गंडा सिंह के मकाम पर तबाही मचा दी। एक तरफ देहात के देहात ज़ेर आब आ गए तो दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ शबीर हैदर ज़फ़र, PNN कसूर। कसूर से शबीर हैदर ज़फ़र की रिपोर्ट आपने देखी। अब ज़रा आज न्यूज़ का रुख करते हैं, जहाँ पर भवाना के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाब की वजह से कई देहात में ज़मीनी कटाव जारी है और सैलाबी रेले के बायस मुतादिद मकान और मसाजिद समेत सैकड़ों एकड़ ज़मीन दरियाबुर्द हो गई है। जी हाँ, तफसीलात है क्या, ये हम जानते हैं मोहम्मद सुमैर निसार की इस रिपोर्ट में। चिलोड़ में चनाब नगर और भवाना के मुकाम पर दरियाए चनाब ने कई देहातों में तबाही मचा दी है। बारिशों और सैलाब के बायस मौजा सांबल और मजाफात में जमीनी कटाव जारी है। सैलाबी रेला सैकड़ों एकड़ जमीन, मसाजिद, मकानात बहा कर ले गया। पेट भरने को रोटी है, ना ही पीने का साफ पानी। धूप से बचने के लिए साहिबा है और ना ही सोने के लिए छत। सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले बैठे हैं। ये सब गरीब लोग हैं, इनके घर गिर गए हैं, इनके दरिया बुर्द हो गए, हमारी मस्जिद भी शहीद हो गई है, हमारा रोड भी गिर रहा है, कोई आदमी इधर नहीं आ रहा। अपनी मदद आप के तहत लोगों को मीना समाज करते हैं कि हमारी मदद करें। कुछ गांव वाले मदद करें, कुछ ऊपर से गांव वाले आते हैं वो हमारी मदद करें, लेकिन इंतजामिया ने हमारा किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। दरिया के करीबी देहात की जमीन और मकीन कई साल से मसाइल में उलझे हुए हैं। साल भर की मशक्कत के बाद फसल, माल और मवेशी जो कुछ इकट्ठा होता है दरिया खा जाता है। मानसून का मौसम हो तो छत टपकने लगती है और सैलाब आ जाए तो दर दीवार बह निकलते हैं। मौजा सांबल और मजाफात सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से दरिया के पुश्ते पुख्ता किए गए, ना ही बात कैंप लगाने से आगे बढ़ सकी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मौजा सांबल के लोग खुले आसमान तले कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सुमैर निसार, PNN चिन्योट। और अब अगर बात करें पंजाब में तो मॉनसून बादल एक बार फिर से छा गए हैं। लाहौर और गुजरावाला में बारिश, ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के कई इलाकों में बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। कुछ जगहों पर जालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल में बादल बरसेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर किया है। तो आज शाम से ये सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चली हैं, तूफ़ानी हवाएं चली हैं और उसके बाद कुछ मकामात पर बादल बरसे हैं, जबकि 17 जुलाई तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्फे से मूसलाधार बारिशें हैं तो आपने एहतियात करनी है। फ्लडिंग का भी इसमें ख़तरा मौजूद रहता है। साथ ही साथ इसके अलावा यालाबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कुछ मकामात पर। तो मजमूई तौर पर मौसम के तेवर क्या होंगे ये बताया है महकमा मौसमियात ने।